ناظرین السلام علیکم، خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ محکمہ برقی میں ملازمتوں کے لیے بہت جلد جاری ہوگا اعلامیہ، تمام زیر التوا بلز کی ادائیگی کی جائے گی۔ نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا کا اجلاس۔ محکمہ ٹرانسپورٹ میں اصلاحات، سارتھی پورٹل پر ہوگا عمل۔ قواعد کی خلاف ورزی کرنے پر لائسنس منسوخ۔ پونم پربھاکر کی پریس کانفرنس۔ پرانی گاڑیوں کو رضاکارانہ طور پر تلف کرنے پر ٹیکس رعایتیں، وہیکل فلیٹ کو عصری بنانے پالیسی کا اعلان۔ نارسنگی پولیس اسٹیشن حدود کے حیدر شاہ کوٹ میں شوہر نے کیا بیوی کا قتل، خود کو کیا پولیس کے حوالے۔ عنبرپیٹ میں جعلی تعلیمی سرٹیفکیٹ کا ریکٹ بے نقاب، بھاری مقدار میں سرٹیفکیٹ ضبط، 2 افراد گرفتار۔ اور سسرالی رشتہ داروں کو ختم کرنے کے لیے کالا جادو کرانے والی خاتون اور نقلی بابا گرفتار۔ اگر آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو کیومیکس بلڈرز اینڈ ڈیولپر سے رابطہ کریں۔ کیومیکس دے رہا ہے ریڈی بینکٹ ہال، 3 فلورز پر مشتمل، 5th 6th 7th فلور پر 6,000 کا 18,000 اسکوائر فٹ کا ریڈی میڈ بینکٹ ہال۔ آج ہی رجسٹری کرائیں اور آج سے ہی فنکشنز کی بکنگ کریں، وہ بھی بہترین پرائم لوکیشن ٹولی چوکی پر۔ منگنی، شادی، ولیمہ، برتھ ڈے پارٹیز، اینیورسری جیسی دیگر تقریبات کے لیے فلی ایئر کنڈیشن کیومیکس کوہینور بینکٹ ہال، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کیومیکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر، ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشل، ڈالر ہلز الکاپور روڈ، موسا انکلیو، ایس اے کالونی ٹولی چوکی، MSN ڈائمنڈ ہلز کالونی ٹولی چوکی، ایزل ریزیڈینسی ایس اے کالونی ٹولی چوکی، سرین ہائٹس گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی، دارالامر، ہیپی ہومز کالونی الکاپور، دارالخیر، سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی، ڈیلائٹ سوٹ beside سنا انکلیو ٹولی چوکی، اکبر انکلیو گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی۔ انکمپرومائزڈ کوالٹی کنسٹرکشنز، آن ٹائم ڈیلیوری ہماری پہچان ہے۔ 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کے آسان اقساط پہ۔ کیومیکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ عزیز کنسٹرکشن معاون گروپ پیش کرتے ہیں 3 اور 4 BHK کے اعلیٰ رہائش فلیٹس حیدرآباد کے پرائم لوکیشنز پر واقع، جیسے معاون 1 بنجارہ ہلز روڈ نمبر 12، معاون گارڈن ٹاور سالار جنگ کالونی ٹولی چوکی، معاون ہائٹس ملے پلی، معاون زمزم لبرٹی ٹولی چوکی شیخ پیٹ مین روڈ، معاون ڈیزائر مراد نگر مہدی پٹنم، معاون فیمس ریسیڈنسی 7 ٹومز روڈ ٹولی چوکی، معاون پرل اور معاون ایونیو سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی، معاون مہاراجہ ریسیڈنسی فتح دروازہ، معاون آشیانہ ملے پلی، معاون کلاسک ماسب ٹینک۔ بہترین فیسلٹیز، اعلیٰ کنسٹرکشن اور مکمل تحفظ کی ضامن ہے۔ عزیز کنسٹرکشن معاون گروپ ڈیسائٹ رتندیپ سپر مارکیٹ شیخ پیٹ روڈ ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ اس مہنگائی کے دور میں سونا خریدنا ہوا آسان۔ جوہری گولڈ ڈائمنڈز اینڈ پلیٹینم ٹولی چوکی لایا ہے گولڈ بچت اسکیم۔ شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے اب سونا خریدیں 11 مہینے کی آسان اقساط پر، اور 12ویں مہینے میں اپنا سونا گھر لے جائیں ایوریج گولڈ ریٹ پر، بنا کوئی ایکسٹرا چارج اور 0% انٹرسٹ کے ساتھ۔ 916 ہال مارک کی جیولری، نو ویسٹیج، نو میکنگ چارجز کے ساتھ۔ اب ہوگی بچت پیسوں کی اور گھر آئے گا سونا، وہ بھی آسان اقساط پر۔ آپ کا بھروسہ، ہماری پہچان، جوہری، کرافٹڈ جسٹ فار یو، گولڈ ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ سرخیاں آپ نے دیکھی ہے، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا نے کہا کہ بہت جلد بڑے پیمانے پر محکمہ برقی میں ملازمتوں کے لیے اعلامیہ جاری کیا جائے گا۔
खम्मम कलेक्टर दफ्तर में महकमे बरकी के ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए भट्टी विक्रमार्का ने कहा, महकमे बरकी में तमाम मखलूआत जायदादों को भर्ती करने जा रहे हैं ताकि अवाम को बेहतरीन खिदमात फराहम की जा सके। अब तक 10 साल से रुके हुए प्रमोशंस की जायदादों पर तकर्रुरात किए जाएंगे। उन्होंने अवाम से कहा कि बरकी मसाइल पर 1912 पर रब्त करके शिकायत दर्ज करें। फोन करने के बाद मुकामी बरकी अमला फौरी मसले की यकसुई करेगा। नायब वजीर आला ने कहा, सैलाब की वजह से बड़े पैमाने पर अवाम का नुकसान हुआ है, उनकी मदद करने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं। भट्टी विक्रमार्का ने कहा, दशहरे के मौके पर इंटीग्रेटेड स्कूल के आगाज के लिए संग बुनियाद रखा जाएगा। नायब वजीर आला ने कहा, अब से महकमे बरकी की तनख्वाह 1 तारीख को अदा की जाएगी। फीस बाज अदायगी स्कॉलरशिप ज़ेर-ए-इल्तिवा रकम को जल्द जारी किया जाएगा। दशहरे से कबल तमाम ज़ेर-ए-इल्तिवा बिल्स भी अदा कर दिए जाएंगे। वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा, महकमे ट्रांसपोर्ट में 2-3 इस्लाहात लाते हुए फैसले किए गए हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि मोटर व्हीकल कानून के हिस्से के तौर पर मुल्क में 28 रियासतों में सारथी व्हीकल पोर्टल पर अमल हो रहा है। तेलंगाना में भी सारथी पोर्टल पर अमल किया जाएगा। इसके लिए जियो 28 के तहत अमल किया जाएगा। वजीर मौसूफ ने कहा कि रियासत और मुल्क में 15 साल तक इस्तेमाल किए गए गाड़ियों के लिए पॉलिसी वज़े की जाएगी। कर्नाटक, महाराष्ट्र में जारी पॉलिसी का जायजा लेने के बाद फैसला किया गया है। गाड़ियों की चेकिंग के तरीक़ेकार को शफाफ बनाने के लिए ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर्स कायम किए जाएंगे। एक सेंटर पर 8 करोड़ रुपए खर्च होंगे। रियासत भर में 32 सेंटर्स कायम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि रियासत में हादसों पर काबू पाने के लिए खुसूसी कवायद कायम किए जा रहे हैं। స్ట్రీమ్లైన్ అవుతుంది, రెవెన్యూ జరుగుతుంది। దాంతో పాటుగా మేము కూడా ఇంటర్నల్గా డిపార్ట్మెంట్ ఎఫిషియన్సీ పెంచుకోవడానికి కావచ్చు, టెక్నాలజీని అడాప్ట్ చేసుకోవడానికి కావచ్చు, న్యూ రిఫార్మ్స్ తీసుకురావడానికి కావచ్చు, కానీ గవర్నమెంట్ పాజిటివ్ ఉంది। సో డిపార్ట్మెంట్గా డే టు డే అఫేర్లా ఎట్లా ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తున్నారు వాటిని ఓవర్కమ్ కావాలని ఇప్పుడు ఉదాహరణ మా సిబ్బంది ఉన్నది। మా సిబ్బందికి సంబంధించి ఒక పోలీస్, ఫారెస్ట్ లేదా అగ్నిమాపక అట్లా ఎట్లుందో మాది కూడా 8 రకాలలో కాకి బట్టలు వేసుకునే వాళ్ళకు కూడా ట్రాన్స్పోర్ట్ అనే వెహికల్ మేము అందరికి సంబంధించి డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫీసర్స్ అందరూ కూడా ఒక వెహికల్ ఇచ్చి దానికి ఒక మోడల్ తయారవుతుంది। అందరూ కూడా ఎక్కడైనా 33 జిల్లాలో ట్రాన్స్పోర్ట్ వెహికల్ అంటే ఒక మోడల్ దాని మీద ఒక స్టిక్కరింగ్ చేసే విధంగా ఒక మోడల్ తెచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం। మేము ఇలా యూజర్ ఛార్జెస్ వల్ల ఇవన్నీ యూజర్ ఛార్జెస్ కూడా జనరల్ యూజర్ ఛార్జెస్ డిపార్ట్మెంట్కి ఉంటుంది, అది కూడా గవర్నమెంట్కి పోతుండే మనం అందరూ ఇనిషియేట్ తీసుకొని సీఎం గారు, డిప్యూటీ సీఎం గారు సహకారంతో డిపార్ట్మెంట్ ఇంటర్నల్ ఎఫిషియన్సీ పెంచుకోవడానికి వాళ్ళు మౌఖికంగా అంగీకరించారు। దానికి సంబంధించి కూడా ఆ యొక్క యూజర్ ఛార్జ్ हुकूमत ने पुरानी गाड़ियों को रजाकाराना तौर पर तलब करने और सड़कों पर नई गाड़ियों की हौसला अफजाई और माहौलियात दोस्त रोड व्हीकल फ्लीट ट्रांसपोर्टेशन का ऐलान किया है। मॉडर्नाइजेशन पॉलिसी जिसके जरिए गैर कारगर यानी कि अनफिट गाड़ियों को स्क्रैप में डालने, उसके बदले नई व माहौलियात दोस्त गाड़ियों की खरीदी के लिए टैक्स रियायतों का ऐलान किया है। इस पॉलिसी का इतलाक खानगी मिल्कियत वाली व सरकारी मिल्कियत वाली बशमूल दीगर नौयत की तमाम गाड़ियों पर होगा। हुकूमत ने गाड़ियों के फिटनेस के लिए ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन कायम करने का ऐलान किया है। हुकूमत ने 37 ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन को इंतजामी मंजूरी दी है। हर स्टेशन पर 8 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। जुमला 296 करोड़ रुपए इस मकसद के लिए मंजूर किए गए हैं। मैनुअल फिटनेस टेस्टिंग को खत्म करने का फैसला किया गया। हुकूमत के जारी करदा इस तवील पॉलिसी में टू व्हीलर के जुमरे के तहत इनकी कीमतों के मुताबिक 1000 से 5000 रुपए तक टैक्स रियायत दी जाएगी। 4 व्हीलर जुमरे में इनकी कीमतों के मुताबिक 10,000 रुपए से 50,000 रुपए तक टैक्स रियायत होगी। तामीराती सामान ले जाने वाली गाड़ियों पर 10% टैक्स छूट, ट्रांसपोर्ट गाड़ियों पर 8 साल तक सेमाही टैक्स पर 10% रियायत हासिल होगी। तेलंगाना ज़राई कमीशन के सदर कोदंडा रेड्डी ने कहा, हुकूमत ने किसानों को 2 लाख रुपए कर्ज माफ किया है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि मुल्क में किसी रियासत में इस तरह का कर्ज माफ नहीं किया गया। जानबूझकर बीआरएस और बीजेपी झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं।
उन्होंने कहा, वजीर आला रेवंत रेड्डी ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह को मूसनदी प्रोजेक्ट के बारे में बताया है। 10 साल से बीआरएस पार्टी ने ड्रेनेज निजाम पर तवज्जो नहीं दी। रेवंत रेड्डी के दिल्ली दौरे पर केटीआर तनकीद कर रहे हैं। किशन रेड्डी मरकजी वजीर होते हुए तेलंगाना को फंड्स लाने में नाकाम रहे। कोदंडा रेड्डी ने कहा, बीआरएस पार्टी के वोट बीजेपी को मुंतकिल हुए हैं, इसलिए बीजेपी ने 8 पार्लिमानी नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है। दरअसल दोनों एक हैं। अगर कोई मुस्तहक किसान है तो वो कर्ज माफी की दरखास्त दाखिल करे। बीआरएस पार्टी के साबिक वजीर व रुकन असम्बली जगदीश्वर रेड्डी ने कहा, हैड्रा और मूसनदी सफाई के मामले में हुकूमत को अवाम की बरहमी का सामना है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, बड़े भाई ने नोट तब्दील करके जो गलती की थी, छोटे भाई भी हैड्रा और मूसनदी को लेकर वही गलती कर रहे हैं। जगदीश्वर रेड्डी ने कहा, हैड्रा किसकी इंतकामी कार्रवाई के लिए लाई गई, मूसनदी की सफाई किसके लिए की जा रही है। रेवंत रेड्डी के ताबेदारी के लिए ये 2 काम किए जा रहे हैं। उन्होंने नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का को चैलेंज किया कि वो मुबाहिस के लिए तैयार रहें। जगदीश्वर रेड्डी ने कहा, अवाम के सवाल करने पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। पुलिस भी हद से ज्यादा जज्बाती हो गई है। आला अहदेदार हुकूमत के हक में काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर सवाल करने वालों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी की जा रही है। मूसनदी के नाम पर रकम लूटने की कोशिश हो रही है, हम वो होने नहीं देंगे। सोशल मीडिया को देखकर रेवंत रेड्डी खौफजदा हो गए हैं। जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि हरियाणा में मौजूदा हालात के मुताबिक बीजेपी कामयाब हुई है। बीआरएस पार्टी के लीडर प्रवीण कुमार ने कहा, वजीर आला और नायब वजीर आला ने कभी भी अकामती स्कूल्स का दौरा नहीं किया। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, अकामती स्कूल के हर स्कूल के लिए एक जियो होता है। हुकूमत की तरफ से यंग इंडिया इंटीग्रेटेड स्कूल के नाम पर 21 अजला में स्कूल का संग बुनियाद रखने का फैसला किया गया। दोनों कायदीन अकामती स्कूल की इंतजामिया से वाकिफ नहीं है। मौजूदा अकामती स्कूल में समाजी तबकात के तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। हुकूमत कौन सा समाजी इंसाफ लाने वाली है, अवाम को बताया जाए। 10 लाख तलबा के साथ हुकूमत खिलवाड़ कर रही है। इंटीग्रेटेड के नाम पर मौजूद SC, ST, BC अकामती स्कूल को बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि इंटीग्रेटेड स्कूल के मामले पर कुल जमाती इजलास तलब करें। MRPS के सरबराह कृष्णा वादिगा ने कहा, वजीर आला रेवंत रेड्डी ने SC जुमराबंदी के बगैर तकर्रुरात में तेजी पैदा कर दी है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने रेवंत रेड्डी के मौक़िफ़ पर 4 शंबे को रियासतगीर एहतजाज का ऐलान किया। जिले केंद्र में अंबेडकर के मुजस्समे से कलेक्टर दफातर तक रैली निकालने का फैसला किया। इसके बाद कलेक्टर से नुमाइंदगी की जाएगी। हैदराबाद में अंबेडकर मुजस्समे तबशीर बाग तक रैली निकाली जाएगी। रेवंत रेड्डी की हुकूमत ने भरोसा दिलाकर धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि कौमी मफाद को अहमियत रखते हैं तो SC जुमराबंदी होने तक मुलाजमतों के तकर्रुरात फौरी रोक दिए जाएं। कांग्रेस पार्टी के लीडर और हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन मनी लॉन्ड्रिंग मामले के सिलसिले में ED के रूबरू पेश हुए। लेकिन मीडिया की तरफ से जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने उन पर लगाए जा रहे इल्जामात को बेबुनियाद बताया। वाज़ेह है कि अजहरुद्दीन पर हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के उनके दौरे सदारत में मुबैना धांधलियों का इल्जामात लगाए गए थे। मीडिया के नुमाइंदों ने जब उससे इस सिलसिले में सवाल किया तो उनका कहना था कि ये सब कुछ गलत है। रुकन कौंसल मिर्जा रहमत बेग कादरी ने सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर GHMC खैरताबाद के चीफ सिटी प्लानर श्रीनिवास रेड्डी के हमरा जायजा इजलास मुनक्किद किया। इजलास में ACPs और DCPs के अलावा दूसरे ओहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर ज़िला इल्तिवा मास्टर प्लान के कामों पर तबादला ख्याल हुआ, जिसमें पुराने शहर के मास्टर प्लान के कामों को जो इंजन बॉली से शास्त्रीपुरम तक जू पार्क के करीब राजेंद्र नगर में आड़मगढ़ के अधूरे कामों पर बात की गई। मिर्जा रहमत बेग ने श्रीनिवास रेड्डी को मज़कूरा कामों की तकमील की तरफ मुतवज्जे किया और इसे जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा किया। बल्दिया की जानिब से कहीं खुदाई करके छोड़ दिया गया तो कहीं कामों को शुरू किया गया, लेकिन इसे पूरा नहीं किया गया, जिससे आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में बहादुरपुरे में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है।
रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने जहनुमा डिवीजन के इलाके तिगलकुंटे में 64 लाख रुपए की लागत से तामीर की जाने वाली सीसी रोड के कामों का मायना किया। इस मौके पर मजलिस के इब्तिदाई सुदूर मुतमदीन के अलावा दूसरे मौजूद थे। रियासती वजीर कोंडा सुरेखा की तरफ से बेटे की तलाक को लेकर किए गए मुबैना रिमार्क पर तेलुगु फिल्म अदाकार नागार्जुना ने हत्तक इज्जत का केस दायर किया था। इस सिलसिले में मंगल को नागार्जुना और उनके अफराद खानदान आमला अकीनेनी, नागा चैतन्या, सुप्रिया और नागा शीला नामपल्ली की अदालत में पेश हुए। नागार्जुना ने अदालत को अपने केस के बारे में बताया। उनका कहना था कि रियासती वजीर के रिमार्क से उनके खानदान की नेकनामी मुतासिर हुई है। खास तौर पर उन्हें अपने बेटे की तलाक को लेकर रियासती वजीर के रिमार्क पर गहरी तकलीफ पहुंची है। नागार्जुना ने मुअज़्ज़ज़ अदालत से दरख्वास्त की कि रियासती वजीर कोंडा सुरेखा के खिलाफ कार्रवाई की जाए। नागार्जुना के अलावा उनकी भांजी सुप्रिया ने भी अपना बयान बतौर गवाह रिकॉर्ड करवाया। मुकदमे की अगली समाअत 10 अक्टूबर मुकर्रर की गई है। मल्लेपल्ली चौराहे के पास बास दुकानों को मुनहद्दम कर दिया गया। जीएचएमसी और टाउन प्लानिंग के अमले की तरफ से ये कार्रवाई की गई। तफसीलात के मुताबिक सड़क के तोसी कामों के पेश नज़र बलदिया और टाउन प्लानिंग अमले की तरफ से ये कार्रवाई की गई। बलदी हुक्काम का कहना था कि मुताल्लिक़ा दुकानदारों को पहले ही नोटिस दी जा चुकी थी। इस मौके पर पुलिस का वसीतर बंदोबस्त देखा गया। नारसिंगी पुलिस स्टेशन हदूद के हैदर शाह कोट इलाके में शौहर ने बीवी का बेरहमी से कत्ल कर दिया। बताया गया है कि चंद दिनों से शौहर और बीवी के दरमियान झगड़ा चला रहा था। मुतवफ़िया के अफराद खानदान ने इल्ज़ाम लगा कि शौहर हमेशा बीवी को हरासा किया करता था। कत्ल करने के बाद शौहर श्रीनिवास अपने बच्चों के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचा और बताया कि उसने बीवी का हथौड़े से कत्ल किया है। पुलिस ने केस दर्ज किया है। इस सिलसिले में तहक़ीक़ात जारी हैं। लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। बाप के हाथों मां के कत्ल की वजह से बच्चों में खौफ का माहौल देखा गया। साउथ जोन टास्क फोर्स ने अंबरपेट पुलिस के साथ मिलकर जाली सर्टिफिकेट के रैकेट को बेनकाब किया है। पुलिस ने बताया कि मलकाजगिरी के साकिन महफूज अकबाल और शेख इलिया साकिन अंबरपेट एसएससी, इंटरमीडिएट और डिग्री के जाली सर्टिफिकेट जरूरतमंदों को भारी रकम के एवज फरोख्त किया करते थे। महफूज इकबाल अंबरपेट के ओवैसी नगर में एमएस इंटरप्राइजेस सिरॉक्स सेंटर चलाया करता था। मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 84 जाली सर्टिफिकेट, 14 अदालती स्टैम्प पेपर, CPU, मॉनिटर, प्रिंटर, 2 फोन, पेन ड्राइव और दूसरा सामान जब्त किया गया। ससुराली रिश्तेदारों से बदला लेने के लिए मुबैना काला जादू कराने वाली खातून और उसके साथी नकली बाबा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक नाजिया नामी खातून हसन नगर के साकिन नकली बाबा मोहम्मद कलीम से अपने ससुराली रिश्तेदारों से इंतखाब लेने के लिए रुजू हुई। पुलिस के मुताबिक कलीम ने नाजिया के ससुराली रिश्तेदारों की तस्वीर को आटे और खिलौनों में रखकर तस्वीर ली और नाजिया को ये बताया कि 48 घंटों में ये लोग मर जाएंगे। शिकायत मिलने पर पुलिस ने कलीम और नाजिया को गिरफ्तार कर लिया। इस सिलसिले में शिकायत कुनिंदा इरफान मलिक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। कलीम इससे पहले भी काला पत्थर, तांडूर, बहादुरपुरा और शमशाबाद पुलिस स्टेशन की हदूद में इस तरह के केसेस में मुलव्विस रह चुका है। पुलिस ने अवाम को मशवरा दिया है कि इस तरह के फर्जी और जाली बाबाओं के झांसे में न आए। माधापुर और बालानगर जोन पुलिस ने मुकामी पुलिस के इश्तराक से 2 बैन रियासती गैंग के 6 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मीडिया को बताया कि मियाँपुर पुलिस ने किरण, मनोहर, बाबर, प्यार सिंह बावला, डी बावला को गिरफ्तार किया, जबकि पेट बशीराबाद पुलिस ने कदक सिंह, ठाकुरदिया और कमानिदिया को गिरफ्तार किया। दोनों गैंग के 6 अफराद और मसरूक आशिया के 2 रिसीवर फरार बताए गए हैं। पुलिस इन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। पुलिस का कहना है कि मस्कुरा गैंग ने साल 2020 से 2024 तक 35 सरक़े की वारदातें सैबराबाद कमिश्नरेट की हदूद में अंजाम दी है। मस्कुरा गैंग का ताल्लुक मध्य प्रदेश के जिले धार से बताया गया है, जिनके खिलाफ मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में छोटे और बड़ी नौयत के 107 केसेस दर्ज हैं। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 6 चाकू, 4 मोबाइल, 11,500 रुपये नगद रकम के अलावा दूसरी अशिया बरामद की हैं।
आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल, 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल। 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6,000 का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, MSN डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमान, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर, सालारजंग कॉलोनी, टोली चौकी, माविन हाइट्स, मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी, टोली चौकी, शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर, मुरादनगर, मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी, 7 टोम्स रोड, टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी, फतेह दरवाजा, माविन आशियाना, मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक, मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अक़सात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर, बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अक़सात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद। महकमे बरकी में मुलाजमतों के लिए बहुत जल्द जारी होगा एलामिया। तमाम ज़ेर इल्तिवा बिल्स की अदायगी की जाएगी। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का का जायजा इजलास। महकमे ट्रांसपोर्ट में इस्लाहात, सारथी पोर्टल पर होगा अमल। क़वायद की खिलाफ वर्जी करने पर लाइसेंस मंसूख। पूनम प्रभाकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पुरानी गाड़ियों को रजाकाराना तौर पर तलब करने पर टैक्स रियायतें। व्हीकल फ्लीट को असली बनाने पॉलिसी का ऐलान। नारसिंगी पुलिस स्टेशन हदूद के हैदर शाह कोर्ट में शौहर ने किया बीवी का कत्ल, खुद को किया पुलिस के हवाले। अंबरपेट में जाली तालीमी सर्टिफिकेट्स का रैकेट बेनकाब। भारी मकदार में सर्टिफिकेट जब्त, तो अफराद गिरफ्तार। और ससुराली रिश्तेदारों को खत्म करने के लिए काला जादू कराने वाली खातून और नकली बाबा गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा ख़िताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।